السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ باعزویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 27 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ واش روم کے دروازے کے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی اور پانی کی دھیمی گونج ماحول میں پھیل گئی۔ یہ لمحہ نہ صرف شاہ کے لیے سکون کا ذریعہ تھا بلکہ اس کی شخصیت کا وہ پہلو بھی تھا جو غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ مدد دیتا تھا۔ میرا بچوں کو سلانے کے لیے ان کے کمرے میں لے آئی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ رائم کو آیت اپنے چھوٹے بستروں پر سکون سے جا کر لیٹ گئے تھے۔ ہر وقت محبت برسانے والے بابا کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر دونوں سہمے ہوئے خاموش تھے، جبکہ شاہ نے بچوں کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر شاہ کے چہرے کے سخت تاثرات بچوں پر بھی اثر انداز ہو چکے تھے۔ ماما، بابا کیوں ناراض ہیں؟ آیت نے نرمی سے اپنی ماں کو گود میں سر رکھ کر پوچھا۔ آیت، بیٹا بابا آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہے، بابا آپ کی ماما سے ناراض ہے کیونکہ ماما نے بابا کا دل دکھایا ہے۔ وہ نرمی سے آیت کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ تو پھر آپ جا کر بابا سے سوری کر لیجئے، بابا آپ کو فوراً معاف کر دیں گے۔ میرب کی بات سنتے ہی رائم اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے اپنی ماں کو آئیڈیا دے رہا تھا۔ جی ماما بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بابا سے سوری کہہ دیجئے، بابا بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو کبھی سزا نہیں دیں گے، فوراً معاف کر دیں گے۔ آیت نے معصومیت اور محبت سے اپنی ماں کی الجھن کو حل کرتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں میں اتنی سادگی اور مٹھاس تھی کہ میرب کا دل محبت سے لبریز ہو گیا تھا۔ میرب نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس لمحے ایک بیٹی کی شدت والی محبت کو میرب نے محسوس کیا۔ وہ ننھی سی پری اس دن ان کی دنیا میں خوشیوں کی ضمانت بن کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے بابا سے سوری کر لوں گی اور انہیں منا لوں گی۔ ابھی آپ دونوں آرام سے سو جائیں، آپ کے بابا بہت اچھے ہیں، وہ مان جائیں گے مسٹیک تھی میری، اس لیے ان کو منا لوں گی۔ میرب نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے ان کے چہرے پر خوشی واپس لاتے ہوئے کہا۔ ہاں میرے خیال سے یہی صحیح ہے، آپ کو بابا سے سوری کر کے انہیں منا لینا چاہیے۔ آپ کی لڑائی کی وجہ سے بابا نے آج ہمیں بیچ پر کھیلنے نہیں دیا، کتنا مزہ آ رہا تھا، آپ نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ رائم نے منہ بسوڑتے ہوئے کمبل میں سر چھپاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اسے یہ بات بہت تکلیف دیتی دیر لگی تھی، اسے اپنے سیر و تفریح کو ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑا اور وہ دل ہی دل میں افسردہ تھا کہ اس کی چھوٹی سی خوشی چلی گئی۔ جی میری جان، میں آپ کے پاپا سے سوری کر کے ان کا موڈ ٹھیک کر لوں گی، اور میں آپ دونوں سے بھی سوری کرتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی بیچ ٹرپ انکمپلیٹ رہ گئی، میرا نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، جیسے وہ واقعی اپنے بچوں کا دکھ کا احساس کر رہی ہو۔ ماما آپ سوری کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ آپ سوری مت بولو، آپ بہت اچھی ہو۔ ماما سوری نہیں بولتی۔ آیت نے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے میرب کے گالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بڑی محبت سے کہا۔ اس کی چھوٹے ہاتھوں کی نرم لکیریں میرب اپنے گالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے خالص اور سچی محبت کو محسوس کرتے ہوئے میرب کی آنکھوں میں ایک جھرمٹ سے چمک ابھری۔ وہ لمحہ اتنا پراسرار تھا کہ جیسے وقت نے خود کو تھام لیا ہو۔ آیت کی آواز میں اتنی معصومیت اور خلوص تھا کہ میرب کی آنکھوں سے محبت کی نمی سے اترنے لگی تھی۔ آیت کی محبت بھری باتیں، اس کے چھوٹے ہاتھ اور اس کی سادہ سی محبت جیسے کسی پرسکون لمحے کی عکس بندی ہو جس میں دنیا کا ہر غم مٹ جائے اور صرف محبت کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میرب نے اپنی سانس روکتے ہوئے آیت کے ہاتھوں کو اپنے گالوں پر محسوس کیا۔ اس کے دل میں ایک بہت ہی خوبصورت احساس ابھرا تھا، مگر اس خوبصورت احساس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو کسی الفاظ سے زیادہ معائنے رکھتے ہیں۔ یہ لمحہ اور یہ معصومیت جیسے ایک پرسکون خواب میں بدل گئے تھے، جیسے وہ ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ نہیں میری جان، جب ماما سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماما اپنے بچوں سے سوری بول دیتی ہے۔ سوری بولنا ایک بہت اچھی بات ہے اور اس سے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا۔ سوری کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور سامنے والے سے صلح کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عاجزی اور خلوص دیکھ کر اس سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس بندے کو دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں سکون کی دولت بھی عطا کرتا ہے۔ میرب نے اپنے بچوں کو بہت محبت اور سمجھداری سے غلطی کا مطلب سمجھایا تھا۔ اب آپ لوگ آرام سے سو جاؤ۔ دونوں بچوں کو الگ الگ بستر پر لٹا کر میرب خود آیت کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بچے کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں جا چکے تھے۔ سارا دن انہوں نے اپنے بابا کے
साथ इस्तांबुल के बहुत से मकामात देखे थे। बस लास्ट का प्रोग्राम थोड़ा अपसेट हो गया, वरना दिन तो बहुत अच्छा गुजरा था। थकन की वजह से इन्हें फौरन ही नींद आ गई थी। मीरा बिन की नरम सांसों की आवाज़ सुनते सुनते नरमी से उठकर इन पर कंबल ठीक कर रही थी। इसने दिल में सोचा था कि बच्चों को सुलाकर शाह के पास जाएगी, शायद तब तक इसे गुस्से की शिद्दत में भी कमी आ जाए। वो शाह के गुस्से से उतरने की खातिर थोड़ा सा और इंतजार करना चाहती थी। बेड क्राउन से सर लगाकर सोच रही थी कि अपने शाह को कैसे मनाना है, लेकिन कब इसकी पलकें बंद हुई, वो नींद के आगोश ने अपनी ही दस्तरस में ले लिया। इसे खुद खबर ना हुई। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन दिन भर की थकन और जज्बात की कशमकश ने इसे लाचार कर दिया। मीरा बैठे बैठे गहरी नींद में जा चुकी थी। इसे इस बात का एहसास ही न हुआ था कि कितना वक्त गुजर चुका है। जैसे ही इसकी आंखें बंद हुई, सुकून की एक गहरी लहर ने इसे अपने गिरफ्त में ले लिया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। इस लम्हे में दुनिया का हर हंगामा खत्म हो गया था, सिर्फ सुकून और राहत का राज था। सुल्तान कमरे के वस्त में खड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, आंखों में गुस्से की शिद्दत से उतरता हुआ इंतकाम था। कमरे में मौजूद हर शख्स के जिस्म पर एक सर्द लहर दौड़ रहा था। सुल्तान की आवाज़ में शदीद गुस्सा था और उसकी जुबान से निकले हुए हर लफ्ज में धमकी का जहर था। तुम लोगों को यहाँ मैंने सिर्फ बातों के लिए नहीं रखा। अगर तुम में से किसी भी हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। शाहमीन मलिक और रुमान शाह ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है, और याद रखो, सुल्तान अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। सुल्तान एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोल रहा था, जैसे मुंह में अल्फाज नहीं बल्कि रुमान शाह और शाहमीन मलिक हो, जिन्हें चबाकर वो मार देना चाहता था। सर, हमने बहुत प्लानिंग की, लेकिन वो हमेशा हमसे पहले ही कोई ना कोई हल निकाल लेते थे। हम इनकी फैमिलीज के करीब तक नहीं जा सकते। इन्होंने इतनी कड़ी निगरानी अपनी फैमिली को रखा हुआ है, हम चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमरे में खड़े सुल्तान के एक खास शख्स ने आहिस्ता से डरते हुए कहा, शट अप, तुम्हारे पास सिर्फ बहाने होते हैं, इसके सिवा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, सुल्तान ने चीखते हुए कहा। सुल्तान के आदमी ने डरते हुए नजरें झुका ली। वहां खड़ा हर शख्स सुल्तान के खौफ से कांप रहा था। सुल्तान की दहशत से कोई भी इसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी प्लानिंग में नाकामी हुई तो एक एक को अपने हाथों से शूट करूंगा, और धमकी नहीं, वादा है। इसकी आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी कि कमरे का हर गोशा लरज रहा था। वो कमरे में मौजूद एक एक शख्स की तरफ घूमकर बोला, तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बात तुम लोगों की खोपड़ी में न घुसी तो कोई मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मुझे नतायज चाहिए, और वो भी फौरन। सुल्तान के अल्फाज में इतनी शिद्दत थी कि कमरे का माहौल ही बदल गया था, जैसे वो शाहमीर और रोमान शाह की जिंदगी छीनने के लिए तैयार हो। हर शख्स खौफ के मारे सर झुकाए खड़ा था। इसकी धमकियों का असर फौरी तौर पर हुआ, और किसी में जुर्रात ना थी कि सुल्तान की आंखों में देख सके। कमरे में गहरी खामोशी थी। सब इसके हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने अपने आदमियों को खतरनाक टास्क देकर वाज़ेह कर दिया था कि इन्हें हर कीमत पर मुकम्मल करना है। इसकी मंसूबाबंदी हमेशा पेचीदा और खतरनाक होती थी। इसके बंदे बखूबी जानते थे कि नाकामी का मतलब इनके लिए दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कमरे में छाई गहरी खामोशी हुई थी। सिर्फ सुल्तान के खतरे, मंसूबे और आवाज़ की गरज सुनाई दे रही थी। मीरत के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी, जिसे मुकाबले के भारी हाथ ने हलक से बाहर निकलने से पहले ही दबा दिया था। गहरी नींद में मीरत को यूं लगा जैसे शाह ने अपने होठों में इसके निचले होंठ को दबाकर अपने दांतों से इसे हल्का सा काट लिया हो, ताकि वो नींद से जाग जाए। ये नरम लेकिन शिद्दत से भरपूर हरकत थी जो मीरब को फौरन होश में ले आई थी। शाह की हरकत को मीरब ने गहरी नींद में भी अपने दिमाग में महसूस किया था, क्योंकि ऐसी शिद्दत भरी हरकत सिर्फ शाह ही कर सकता था। मीरब को हमेशा से अपने शौहर की हिफाजत पर मुकम्मल यकीन था, लेकिन आज कुछ ऐसा था जिसने शाह को खुद में इतना डुबो दिया था कि वो सोचते सोचते जैसे खुद को खो बैठा था। शाह की हरकत की वजह से मीरब की आंखें बेख्तियार खुल गई थी। वो नींद से उलझती हुई जाग उठी थी, और जैसे ही इसकी नज़र शाह पर पड़ी, वो फौरन समझ गई थी कुछ तो हुआ था जिसने इसकी नींद को तड़पाया था। शाह का चेहरा गुस्से से लाल था, मगर इसमें एक नरम सी मोहब्बत की झलक भी थी जो इसकी आंखों में चमक रही थी। मीरब के लिए समझना मुश्किल था कि इस वक्त शाह गुस्से में है या मोहब्बत में। इसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत थी, मगर इसकी आंखों में एक नरमी थी जो कभी कभार गुस्से की तह पे छुप जाती थी। वो जानती थी कि शाह का गुस्सा हमेशा इसकी मोहब्बत के पीछे छुपता है, मगर इस लम्हे में वो दोनों जज्बात एक साथ मजबूत हो रहे थे। इसलिए समझना मुश्किल था शाह कितने परसेंट गुस्से में है। सॉरी शाह, मैं आने वाली थी। मीरब ने माजरत करते शर्मिंदा सी नज़रों से शाह की जानिब देखते हुए कहा। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बच्चों के पास सो गई थी। वो जानती थी कि शाह के लिए ये बहुत अहम था कि वो हमेशा इसके करीब रहे। तेरी सॉरी गई तेल लेन, ਜਦੋਂ पता है कि मैनू तेरे तो बगैर नींद नहीं आती, तो फिर टॉर्चर करने का कोई नवा तरीका है। मीरब शाह के बोले हुए अल्फाज को समझ नहीं सकती थी, मगर इसके चेहरे के जावियों से इसे इतना ज़रूर पता चल गया था कि शाह इस वक्त शदीद गुस्से में है।
اس کی حرکت شاہ کو بالکل ناگوار گزری تھی اور میرب کو آنکھ کھلتے ہی پوری امید بھی تھی کہ یہی ہوگا۔ وہ بھی یہی سمجھ گئی تھی کہ اس وقت شاہ کو اپنے ہی غصے کو پنجابی میں ہی ظاہر کرنا ہے، کیونکہ جب بھی شاہ کو غصہ آتا ہے یا محبت یا شدت بڑھتی ہے تو اسے صرف پنجابی زبان میں ہی چس آتی ہے۔ اس کے پیارے شاہ کو جدید جذبات کے وقت اور زبان میں احساسات ظاہر نہیں کرنے آتے تھے، مطلب شاہ کو چس نہیں آتی۔ مجھے یہ بتاؤ کیا حرکت کی تھی؟ کیا سوچ کر تم بچوں کے پاس جا کر سو گئی تھی؟ مطلب یہ کہ تم پر ذرا سا غصہ دکھاؤں تو مجھے ٹارچر کرنے کے لیے بچوں کے روم میں جا کر سو جاؤ گی؟ شاہ نے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے میرب کے جبڑے کو زور سے پکڑ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرب کی تو نیند جیسا غائب ہو چکی تھی۔ بیچارے کو لگ رہا تھا کہ آج شاہ نے اس کا جبڑا توڑ ہی دینا ہے۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی تھی کیونکہ آج شاہ کا پارا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہائی تھا۔ میرب کو اچانک اپنی شادی کی پہلی رات یاد آ گئی جب دشمن جان نے غصہ نکالنے کے لیے اسے دسمبر کی یک بستہ بارش میں پوری رات باہر کھڑا کر دیا تھا۔ سوری شاہ، مجھے پتا نہیں چلا کب میری آنکھ لگی۔ میں آپ کو ٹارچر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے خوف کی میرب کی معذرت کے الفاظ جیسے 3 سے 4 ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے۔ چل کر تینوں سوری کرن دا بڑا شوق ہے۔ اج تے سوری کسی ہور انداز نال ہی قبول کراں گا۔ مطلب؟ میرب نے حیرانی سے شاہ کو دیکھا جیسے وہ سمجھ نہ پائی وہ شاہ کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب کہ تم معصوم بچی نہیں ہو، میری باتوں کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے۔ ڈرامے بازیاں بند کرو، مت بھولو تمہاری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے تمہارے شاہ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ڈرامے بازیاں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ شاہ نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے غصے میں کہا، پلیز شاہ، کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ غلطی سے نیند آ گئی، کوئی قیدی تھوڑی ہوں جسے نیند نہیں آ سکے۔ میرب نے شاہ کی نظروں سے بچنے کے لیے فضول سے جملے بولتے ہوئے تیزی سے کہا، کیونکہ شاہ کی آنکھوں کی تپش وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے ظالم اس کا جبڑا اتنے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ تکیے سے تھوڑا سا سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ایسی پوزیشن میں بیٹھی تھی کہ نہ اسے بیٹھا ہوا کہا جا سکتا تھا نہ لیٹا ہوا۔ یہ بھی شاہ کا سزا دینے کا بہت اچھا طریقہ تھا جس میں وہ اسے بے چین اور بے سکون رکھنا چاہتا تھا۔ شاہ نے جب جبڑے سے مضبوطی سے پکڑا تو میرب بیچاری اٹھنے کی کوشش میں بیچ میں ہی لٹک گئی تھی۔ دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے ہوئے تھے اور چہرہ شاہ کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ شاہ کا مضبوط ہاتھ اس کے جبڑے پر گرفت بنائے ہوئے اسے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں بیچاری اٹھتی بھی کیسے؟ جبڑے کو تو اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا، وہ پیچھے کو واپس جا کر اپنا جبڑا بالکل بھی نہیں توڑوانا چاہتی تھی۔ قیدی تو تم ہو، رومانچا کی محبت، اور تم میرے عشق کے پابند ہو۔ یہ جو تمہاری زبان بے وقوفی سے چل رہی ہے، اس کو میں اچھے طریقے سے بند کرنا جانتا ہوں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے پڑھ نکل آئے ہیں، ان کو میں ابھی کاٹ کر چپ کرا دیتا ہوں۔ جس آزادی کو میں نے تمہیں محبت سے دیا تھا وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بے مقصد ہو چکی ہے۔ شاہ نے میرب کو جھک کر اپنے مضبوط بازوں کے میں جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج شاہ کی آنکھوں میں وہی شدت اور جنون تھا جو شادی کے پہلے سال میں تھا۔ اس شاہ کو سمجھنا اور ہضم کرنا آسان نہیں تھا، اور یہ بات میرب سے بڑھ کر کون جانتا تھا۔ شاہ پلیز آپ مجھ پر غصہ مت ہوں، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرب نے شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے انتہائی لاڈ سے کہا، کیونکہ یہ حربے ہمیشہ کامیاب آتے تھے، مگر آج وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ آج شاہ کا غصہ اتنا شدت اختیار کر چکا تھا کہ اسے نرم لفظوں کی مٹھاس شاہ پر کوئی اثر نہیں کرنے والی تھی۔ تم یہ معصومیت والا چہرہ بنا کر پیار بھری باتیں کر کے اور ڈرنے کی ایکٹنگ کر کے مجھ سے بچنے کی امید مت رکھنا۔ شاہ میرب کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر ہوٹل کی گیلری کی جانب لے جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ترکی کے دسمبر کی ٹھنڈ اور بالکنی کا منظر، او مائی گاڈ، میرب پر سوچ کر ہی کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ شاہ کے مضبوط سینے سے اڑتی ہوئی خوشبو میرب کے حواسوں میں اترتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ شاہ کا غصے میں بھی اس کے قریب ہونا جیسے ہر لمحہ اس کے وجود میں ایک نئی تپش پیدا کر رہا تھا۔ شاہ نے جیسے ہی بالکنی کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ پوری فضا میں سردی کی گہری لہر دوڑ رہی تھی۔ میرب سردی کی لہر سے چپتے ہوئے بے اختیار شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ ترکی کی دسمبر کی رات میں برف کی ہلکی سی دھنک ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ہواؤں میں خاص سناٹا ہوا تھا جس میں سردی کی گرفت اتنی شدید تھی کہ میرب کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈک کی لکیریں واضح ہو رہی تھی۔ سرد ہواؤں کے ٹیسوں میں شاہ کا ہاتھ جو اس کے جسم سے لگا تھا اس کے لیے جیسے واحد تپش کا ذریعہ تھا۔ دور تک پھیلی برف اور چاند کی مدھم روشنی میں یہ منظر اتنا دلگداز تھا کہ اس کے اندر ایک انجانی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اگر شاہ غصے میں نہ ہوتا اور موسم اتنا ٹھنڈا نہ ہوتا تو میرب کے لیے یہ بہت رومانٹک ٹائم ہوتا، مگر سردی سے تو میرب کی وجہ سے جان جاتی تھی، اور یہاں پر تو انتہا تھی۔ اوپر سے شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ میرب کو تو کپکپاہٹ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ شاہ پلیز، بہت ٹھنڈ ہے، میرب نے کپکپاتے ہوئے، اس کی آواز میں سرد ہواؤں کی گونج بھی شامل تھی۔ اس کے جسم میں ٹھنڈ کی لہر دوڑ رہی تھی۔
मगर शाह का वजूद इसके लिए वाहिद पनाहगाह था। शाह के वजूद की हरारत इसे सुकून दे रही थी, मगर बेसुकून करने वाला भी तो दुश्मन जान खुद था। इसकी गुर्बत में ऐसा जादू था कि मीरब इसकी गुर्बत के सहर में जकड़ी जाती थी। शाह से अपने बाजुओं में उठाए हुए ऐसे खड़ा था जैसे मीरब कोई कांच की गुड़िया हो जिसका कोई वजन ना हो, और इसकी हर हरकत में गैर मामूली नरमी थी। वो मीरब को अपने सीने से चिमटाए हुए था जैसे वो इसे अपनी तमाम दुनिया का कीमती तरीन खजाना समझता हो। नीरव के होंठ ठंड से कपकपाते हुए कांप रहे थे। दिसंबर की सर्द हवा ने इसकी नर्म पंखड़ियों को छूते हुए गुस्ताखियां की थी। शाह प्लीज अंदर चलें, वो इल्तिजा कर रही थी। नहीं, मेरी जान को बहुत नींद आ रही है, तो इसलिए तुम आराम से सो जाओ, वो सपाट लहजे में बोला था। शाह, यहाँ पर कोई कैसे सो सकता है? वह कांपते हुए बोली थी। जैसे मेरी जान अंदर सो रही थी बच्चों के पास, बिल्कुल वैसे ही। शाह गलती से नींद आ गई थी। वो कपकपाते हुए बोली, गलती से कुछ भी नहीं होता। अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें मोहब्बत और यकीन का मतलब समझाना जरूरी है। शाह ने अंदाज में मजबूत लहजे में कहा, इसलिए खामोशी से मेरी बाहों में सो जाओ, वरना मैं तुम्हें इससे भी कड़े इम्तिहान में डाल दूंगा। शाह का फैसला अटल था। शाह कितने बेरहम है। इस ठंड से मेरी जान निकल रही है। मीरब ने कपकपाते हुए कहा। इसके अल्फाज में हल्की सी बेबसी थी, मगर शाह की आंखों में वो वही शिद्दत और गुस्सा कायम था। इसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो साकत था जैसे वक्त की धड़कन भी रुक गई हो। और बताओ, मैं और क्या क्या हूँ? मैं जालिम हूँ, मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, भरोसे के लायक नहीं हूँ। शाह मीरब की हर बात को अपने अंदाज से सोच रहा था। अब मीरब को शाह के गुस्से की नौयत का शिद्दत से एहसास होने लगा था, और इसे समझ आ रहा था कि शाह शायद इसकी सोच से कहीं ज्यादा गुस्से में है। अब मीरब की धड़कनें शाह की नाराजगी से बंद होने लगी थी। मीरब हर मुश्किल से गुजर गुजर सकती थी, मगर शाह की नाराजगी हमेशा इस तरह से उसे बेचैन कर रही थी। तो वो बस सोच ही रही थी कि शाह नाराज है तो वो उसे मना लेगी, मगर शाह तो अंदर से टूटा हुआ था। इसके आखिरी अल्फाज बहुत तकलीफे थे। शाह मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मीरब ने तड़क कर सीने से सर निकालते हुए कपकपाते लहजे में कहा, दोनों हाथ शाह की दाढ़ी वाले गालों पर रखते हुए मोहब्बत की हिद्दत भरी निगाहों से उसे देखा था। नहीं मीरब, तुम्हारा जो भी मतलब है, आज तुम मुझे समझाओ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नजरों में वो सब कुछ नहीं देख सकता जो तुम मुझे हर लम्हा महसूस करवाती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो डर खत्म नहीं कर पा रहा। क्यों हर लम्हा तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कमज़ोर था? मैं बहुत कमज़ोर था। मैं इस वक्त अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इस लम्हे को तुमने हमारी ज़िंदगी में कैद कर लिया है, और तुम इसे जाने नहीं देती, और फिर कहती हो कि मैं गलत फहमी का शिकार हूँ। शाह ने एक एक लफ्ज़ सख्त अंदाज में कहा था, और इसके अंदर का दर्द इसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। शाह, ऐसा नहीं है, मैं वो सब कुछ जान कर नहीं करती। प्लीज़, अगर आप मेरी वजह से गुस्से में हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुड, ये काम तुम बहुत अच्छा करती हो। तुम्हें सिर्फ सॉरी कहना आता है, इनको सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया करो। शाह ने इसकी पंखड़ियों पर सख्ती से लबों को रब करते हुए शिद्दत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, शाह, आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे प्यार पर शक कर रहे हैं। नीरव की आंखों में नमी आ गई थी। ठंड की शिद्दत ने इसके होठों को लरसते हुए अल्फाज अदा करने में मुश्किल डाल रखी थी। शाह अपने गुस्से की तपिश में बिल्कुल सुकून से खड़ा था। दोनों के लिए मौसम मुख्तलिफ था। नीरव के लिए मौसम सर्दी की इंतहाओं तक ठंडा था, जबकि शाह के लिए जज्बों की शिद्दत से भरपूर गर्म था। क्यों? सिर्फ शक करने का हक तुम्हारे पास है, और प्यार की बात ना करूं, ये तुम्हारा प्यार था? जब तुम मुझे गुस्से से छोड़कर खुद खुद पुरसुकून होकर अपने बच्चों के साथ जाकर सो गई, और फिर तुम इसे प्यार कहती हो? शाह, आपको क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, मैं कोई वजाहत नहीं दूंगी। सिर्फ इतना बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाबात मिल जाए। आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होता, प्लीज़। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम इसे आजमा लो। चाहो तो भागकर अपने बच्चों के साथ जाकर दिल के सब गम दूर करके सो जाओ। शाह के लहजे में सर्द और टूटे हुए गुस्से की एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो खुद भी अपने अल्फाज पर काबू न पा रहा हो। मीरा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे इसके अंदर की सारी जज्बाती ताकत एकदम से साकत हो गई हो। शाह के अल्फाज पर इतने गहरे असरात डाल चुके थे। शाह, आप बालकनी का दरवाजा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लीजिएगा और जाकर आराम करें। मीरत ने नैन लहजे में कहा। चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो, गोया इसने किसी अहम फैसले का इदराक कर लिया हो। क्या? शाह ने हैरत से कहा। मैंने कहा, आप अंदर से दरवाजा बंद कर लें और मुझे शादी की इस पहली रात की तरह यहाँ पर ठंड में खड़ा रहने दें, ताकि मैं आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। उस वक्त भी मैं आपको मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए था, और आज भी सबूत चाहिए, तो आज मैं खुशी खुशी वो सबूत दूंगी। मीरत के लहजे में ठंड की कपकपाहट एक खामोशी भरा दर्द था। शाह गहरी नजरें मीरब के चेहरे पर गाड़े हुए से एक टक देखे जा रहा था। मोहब्बत का कोई सबूत नहीं होता, मोहब्बत खुद एक सबूत होती है। शाह के लहजे में ठहराव था। आपने एक बार भी कहा था मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती, तो ये बात आप पर भी लागू होती है। मीरब आंखों में आंखें डालकर कपकपाते होंठों से बोल रही थी। बढ़ती हुई रात के साथ सर्दी की लहरें लहरें शिद्दत से बढ़ रही थी।
और मीरब का जिस्म ठंड से कांप रहा था। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, मैंने इनकार नहीं किया। शक का तो सवाल ही नहीं हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। अगर तुम मेरे यकीन को झुटला सकती हो तो झुटला कर दिखाओ। शाह के मुंह से भाप धुएं की तरह उड़ रही थी। जिस मीरब की जिंदगी अपने शाह के इर्द गिर्द घूमती है वो क्या आपकी बातों को झुटलाएगी? वो जिसकी खुशी और मुस्कुराहट का वाहिद मकसद आप हो, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी बातों को झुटला सके। पता नहीं कहाँ से आप इतनी सारी गलत फहमियां अपने दिल में पाल ली हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं चाहकर भी अपने अंदर से डर को निकाल नहीं पाई। न चाहते हुए भी वो गुजरे हुए 2 साल में अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। मगर शाह कसम से इसका हरगिज वो मतलब नहीं कि जो आपने निकाला है। हाँ, मैं तस्लीम करती हूँ कि तुर्की के साथ मेरा एक बहुत दर्दनाक रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसी जगह मैंने अपने बेटे को 2 साल के लिए खो दिया था। आप मुझसे दूर हो गए, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो सब कुछ झेलना इतना आसान नहीं था। शाह, मेरे इस डर को आपने खुद पर ऐसे महसूस कर लेंगे ये मुझे अंदाजा नहीं था। मीरब की आंखों से आंसू बह रहे थे, इसकी नाजुक पंखुड़ियां कपकपा रही थी, ठंड की शिद्दत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। शाह का तहम्मुल भी अब खत्म हो चुका था। वो आज मीरब पर अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता था, मगर वो जानता था कि कोई भी तकलीफ मीरब की तकलीफ से बढ़कर नहीं हो सकती। और फिर वो रोमांच आता जिसके लिए मीरब की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। जबकि शाह खुद भी इस अजियत के साथ बाहर खड़ा था, मगर फिक्र सिर्फ इतनी थी और वो इसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ रहा था। तो इन 2 सालों में इसने तुम्हें अपने और बेटे दोनों को खो दिया है। तुम्हें क्या लगता है इन यादों ने मुझे अंदर से नहीं तोड़ा हो? मैं नहीं टूटा, मगर तुम दोनों आपस में जिंदगी में पाते ही मैं इन सब की अजियतनाक लम्हों को पीछे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में इनकी गुंजाइश भी नहीं थी, और तुम लोग मेरे करीब आए तो मेरी दुनिया फिर से मुकम्मल हो गई। शाह, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप रोमांचा है। आपकी बर्दाश्त, आपकी अकल, आपका दिल और आपकी हिम्मत सब कुछ मुकम्मल है। मैं चाह कर भी आप जैसी नहीं बन सकती। मीरब की आंखों में से बहते हुए आंसुओं की तेजी शाह के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। रोना बंद करो मीरब, शाह ने नरमी से कहा। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। तुम रोकर खुद को सही और मुझे गलत साबित नहीं कर सकती। मैं तो रोऊंगी, मीरब ने तड़प कर कहा। अब क्या मैं रोक भी नहीं सकती? ना तो ये बता रहे हैं कि आपको कैसे मनाऊं, और ऊपर से डांटे जा रहे हैं। ठंड देखी है आपने, मर जाओगी। ना फिर ढूंढते रहेंगे मीरब कहाँ है? सोने रबदा वास्ता है, मरन दिया धमकियां न दिया कर, शाह ने बेख्तियार होकर कहा। इसकी आवाज की में मोहब्बत और बेबसी दोनों छलक रहे थे। तो जानती है तेरे इन अल्फाजा नाल मेरा दिल किस कदर दुखदाय। शाह के चेहरे पर मोहब्बत के रंग गहरे होते जा रहे थे, जिसके जैसे इसके दिल की सारी शिद्दतें और जज्बात इसके चेहरे पर आया हो रहे हो। कैसा था इस शख्स का इश्क जो कुछ देर पहले मीरब पर बेतहाशा गुस्सा कर रहा था, मगर मीरब के आंसू और इसके दिल को छूते अल्फाजों ने लम्हों में इसके दिल का आलम बदल कर रख दिया था। वो गुस्सा चंद लम्हे पहले बर्फ की तरह सर्द था, अब मोहब्बत की तपिश में पिघल रहा था। शाह का दिल जैसे मीरब की तकलीफ से पिघलने लगा था। वो इसके जज्बात मोहब्बत के समंदर में डूबते जा रहे थे। बस आपको यही आता है, खुद खुद तो पंजाबी बोलकर चस्प पूरी कर लेते हैं, और मुझे जो समझ नहीं आती इसका क्या? पता नहीं इतने बड़े बड़े पंजाबी के अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। मैं पहले वाले याद नहीं कर पाती, अब कुछ नई चीजें ले आते हैं। बेख्तियार मीरब ने होते हुए लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। हंसते हुए मीरब की ठंडी पंखुड़ियां शाह के दिल पर बिजलियां गिराने के लिए काफी थी। शाह की नजरें मीरब की ठंडी नेचुरल पिंक पंखुड़ियों पर मरकूज थी। वो पूरी शिद्दत से मीरब की पंखुड़ियों पर झुका था। सुल्तान अपने बड़े से खूबसूरत गार्डन में घूमता हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। गार्डन में हर तरफ महकते फूलों की कतारें थी। शाम की धीमी रोशनी में मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। हवा में फूलदार पौधों की धीमी धीमी खुशबू और बहते फवारे की मध्यम आवाज माहौल को और भी पुरसकून बनाए हुए थी। गार्डन के बीच में काफी महंगे खूबसूरत सोफे रखे हुए थे, मगर सुल्तान मुसलसल चल रहा था, जैसे कोई सोच या बात इसे एक जगह बैठने नहीं दे रही थी। निशान ऊपर टेरेस पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो उलझन में थी कि सुल्तान फोन पर किससे बात कर रहा है। वो बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो खुशी की लाली साफ जाहिर कर रही थी कि कोई ऐसी बात इसको फ़ोन पर सुनने को मिली है जिससे वो बहुत मुतमईन और खुश था। इधर से उधर चलता हुआ किसी गहरी सोच में मगन नजर आ रहा था। इशाल को महसूस हुआ सुल्तान किसी अहम मंसूबे पर काम कर रहा है, और ना जाने क्यों इसका दिल ये कह रहा था कि ये सब कुछ रोमांच से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहा था, ये बात इशाल के लिए एक मुअम्मा बन गई थी। गार्डन का सुकून और सुल्तान का पुरस्कार रवैया दोनों इशाल की बेचैनी बढ़ा रहे थे। इशाल ने मजीद सोचना छोड़ दिया। तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। वो चुप कर सुनना चाहती थी कि सुल्तान आखिर रुमान शाह के खिलाफ क्या मंसूबा बना रहा है। सुल्तान के लहजे में जो एतमाद इशाल रुमान को नुकसान से पहुंचाना चाहती थी, रुमान शाह के लिए इसके दिल में जो जज्बात थे वो इतने गहरे थे कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। सुल्तान की
पुरस्कार अंदाज ने इसके दिल में एक खौफ सा पैदा कर दिया था, जिसका जवाब तलाश करना जरूरी था। ईशान नीचे आकर दीवार के साथ छुपकर खड़ी हो गई। सुल्तान इस वक्त खामोश था, शायद वो सामने वाले की बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खुश हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। ऐसे ही तो मैं मैंने तुम पर एतमाद किया है। तुम वाकई मेरे यकीन के लायक हो। सुल्तान की आवाज़ में खुशी की गहरी झलक थी। ये साफ जाहिर था कि इसका कोई बहुत बड़ा मंसूबा कामयाब हो रहा था। विशाल का दिल अजीब सी बेचैनी में खड़ा घिरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सुल्तान किससे बात कर रहा है। ये बात इसके लिए गैर मामूली थी, क्योंकि सुल्तान अक्सर हर मामले में विशाल को अपने साथ शामिल रखता था। मगर इस बार सुल्तान ने निहायत मोहतात अंदाज अपनाते हुए इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। विशाल मुसलसल सुल्तान की बात को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक वो खामोश हो गया। विशाल ने एहतियात से थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने की कोशिश की कि वो खामोश क्यों हो गया है, लेकिन जैसे ही इसने झांका, वो हैरत और खौफ के 2 कदम पीछे हट गई थी। सुल्तान बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। इसकी आंखों में गहरी संजीदगी और चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट थी। सुल्तान का खौफ विशाल के चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या हुआ बीवी, डर गई? सुल्तान ने बढ़कर बालों आगे बढ़कर इशाल के करीब आते हुए पीछे से इसके बालों को सख्ती से पकड़ लिया। इसकी नजरें अंगारे बरसाती हुई थी और लहजे में एक अजीब से सख्ती और तंज छुपा हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। इशाल खौफजदा होकर लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। मैं तो बस इसलिए यहाँ रुक गई थी कि आप फारिग हो जाएं। आप फिर आपके साथ बैठकर कुछ देर बातें करूंगी और साथ में चाय पियेंगे। घबराहट में अपनी बात पर मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी। तुझे क्या सुल्तान साइकिल पागल लगता है? मुझे धोखा दे दोगी? 2 टके की कम अकल लड़की। वो घबराते हुए इसके बालों को और भी जोर से झंझोड़ते हुए बोला। नहीं सुल्तान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो बालों के दर्द से तड़प उठी थी। इसने अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश कोशिश कर रही थी। तो ऐसा क्यों करेगी? क्या तुझे लगता है कि मैं नहीं जानता, या फिर तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है? सुल्तान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। ये सब अपने आशिक के लिए करेगी? नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। वो तेरा आशिक ही नहीं, आशिक तो तू है, और रोमांचा के लिए मुझे धोखा देगी। तेरी औकात, चल मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। वो इसके बालों से मजबूती से पकड़कर इसे घसीटते हुए रूम के अंदर ले जा रहा था। इशाल तड़प कर इसके बालों को छुड़वाने की बेचैन कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान के साथ साथ वो रोते हुए बेबस अंदाज में चलती जा रही थी। सुल्तान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो सिसकियां भरते हुए दर्द से तड़पते हुए बोली। दर्द से हर लफ्ज इसके गले में फंस रहा था। तुझे दर्द तो मैंने दिया ही नहीं बेबी, अब चलो तुम्हें दर्द से रोश डांस करवाता हूँ। सुल्तान का लहजा इतना सख्त था कि लगता था कि जैसे वो बेरहमी का सबक सिखाने वाला था। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। तुमने सुल्तान को धोखा देने के लिए जुर्रात की थी। वो इसे रूम में घसीटते हुए फर्श पर जोर से पटकते हुए चीखा। तुम जैसी बेवकूफ़ को बार बार औकात याद दिलानी पड़ती है, क्या करूँ? तुम्हें अपनी औकात भूल जाती है, मगर कोई बात नहीं बीबी, टेंशन नहीं लेनी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। सुल्तान की आंखों में शैतान की झलक थी। इसके अंदाज में गरूर था और लफ्जों में ऐसी तनकीद और तंज थी कि जो इसकी शैतानी फितरत को वाज़ेह तौर पर जाहिर कर रही थी। इसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो सिर्फ ताकत के गुरूर की नहीं, बल्कि इसकी शातिराना सोच की भी अक्कासी कर रही थी। इसके चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट थी जो इसकी चालाकी और शैतानी फितरत को जाहिर करने के लिए काफ़ी थी। निशाल के आंसू रुखसारों को भिगो रहे थे। वो जानती थी कि सुल्तान इसे बुरी तरह मारेगा। तशद्दुद करना सुल्तान की फितरत में शामिल था। सुल्तान, मुझे मारना मत, मैं थक गई हूँ तुम्हारे हाथों से मार खाते खाते। मुझे मारना मत। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सच्चाई मैं अपने मुंह से बता देती हूँ। वो पीछे की तरफ स्क्रॉल करती हुई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। डर के मारे आंसू उसकी आंखों से बहते हुए इसके गालों को भिगो रहे थे। तो हरकतें ही ऐसी क्यों करती है? इसकी वजह से मुझे तुझे मारना पड़ता है। सुल्तान एड़ियों के बल नीचे बैठते हुए इसके जबड़े को पकड़कर इस हद तक दबा रहा था जैसे वो इसे तोड़ देगा। चल शाबाश, बता तू वहां छुपकर क्या कर रही थी? पता तो मुझे है, पर तू बता वहां क्या कर रही थी? सुल्तान का लहजा तीखा और गुस्से से भरा हुआ था। मैं वो हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर खौफ और डर के मारे इसके अल्फाज टूटे हुए थे। हाँ 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 हाँ। सुल्तान का शैतानी कहका गूंज उठा था। वो इसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। इसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो इसकी शैतानी फितरत को पूरी तरह जाहिर कर रही थी। वो सच में खूंखार और बेरहम शख्स था जिसे दूसरों की तकलीफ में खुशी मिलती थी। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसकी नजरें अंगारे बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी भी लम्हे अपना काबू खो देगा। इसका हाथ इशाल के गले के करीब, बेहद करीब था। बता, क्या सुन रही थी तुम? वो जोर से चिल्लाया था। ईशान खौफ के मारे कुछ नहीं कह सकी थी। इसका दिल तेज धड़क रहा था। मैंने कुछ भी नहीं सुना। ईशान ने सुल्तान के डर से बमुश्किल ये अल्फाज हलक से निकाले थे, इससे पहले कि मैं कुछ सुन पाती। तुमने मुझे देख लिया था।
चलो मान लेता हूँ कि तुमने कुछ सुना नहीं, मगर ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर तुम वहां खड़ी होकर मीठी जासूसी कर क्यों रही थी। पूड़ियों के बल इसके करीब बैठा हुआ था, इसके हाथ और इसके गले के बहुत करीब था। इसकी नजरें अंगारों की तरह आग बरसा रही थी। ये सब कुछ इशाल के खौफ को बढ़ाने के लिए काफी था, मगर इसके दिल में जो रोमांचा का इश्क था इसे मजबूत बना रहा था। इसे हर हाल में अपने और रोमांचा की हिफाजत करनी थी। ये सब बगावत इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, और यही बगावत सुल्तान को तैश दिलाने के लिए काफी थी। क्या सुनना चाहते हैं कि मैं वहां किसकी मोहब्बत में खींची चली आई थी? वो तो हकीकत है आप जो आपको नजर आ रही है। इसकी इसने आंखों में आंखें डालकर बेखौफ होकर कहा। मैं जानती हूँ कि तुम कोई घटिया प्लानिंग कर रहे हो, और याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारी किसी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बला से पूरी दुनिया को आग लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम मेरे रोमांचा का एक बार भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो आंखों में आंखें डालकर गुर्राते हुए बोली, गुस्से से बोली थी। इस वक्त इसके चेहरे पर डर की कोई शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। इस पर एक अजीब सा जुनून तारी हो चुका था। ओ माय गॉड, मैं तो डर गया। सुल्तान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ मसनूई खौफ से एक्टिंग की थी। इसके चेहरे पर एक मखसूस चमक थी जो इसके अंदर के शैतानी फितरत को वाज़ेह तौर पर जाहिर कर रही थी। तुम इसकी हिफाजत करोगी और मुझे धोखा दोगी? तुम्हें लगता है कि मैं खामोश बैठा रहूंगा? तो दांत पीसते हुए कहा। इसके लहजे में गुस्से और तनकीद का तासुर वाज़ेह था। इसकी आंखों में खून उतरने लगा। इशाल को समझ आ रहा था कि इसके साथ क्या होने वाला है, मगर कहते हैं ना, इश्क पर किसी का जोर नहीं। एक तरफ नफरत थी और दूसरी तरफ जुनून, दोनों ही मुकाबल आकर हारने को तैयार नहीं थे। प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो तकलीफ से कराहते हुए चीख रही थी। सुल्तान का भारी पैर इसके नाजुक से हाथ पर रखा हुआ था। इसने पूरा दबाव डालकर रखा था, जैसे वो इसे आखिरी हद तक तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। सुल्तान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से चिल्ला रही थी, मगर वो बेरहमी से पाँव को इसके हाथ पर रखे हुए मसल रहा था। सख्त जूतों के तले से इसके हाथों पर खराशें आने लगी थी। खराशों से हल्का हल्का खून रिसने लगा था, और इसकी तकलीफ में मजीद शिद्दत आ गई थी। वह सुल्तान की टांग पर जोर जोर से हाथ मारते हुए खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान भी बेरहमी से अपनी जगह पर कायम था। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल रही थी, जो इसकी खुशी और तस्कीन का इजहार थी। इसे शाल को तड़पता हुआ देखकर एक अजीब लज्जत मिल रही थी। इसके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे वो कोई दिलचस्प खेल खेल रहा हो। इसकी आंखों में शैतानी चमक और मुस्कुराहट में एक गहरी लज्जत थी। इस दर्द को तुमने खुद खुद चुना है। अब इसे बर्दाश्त करो बेबी। वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जालिम बनकर उसके हाथ पर अपना पाँव रखे हुए था और मुसल रहा था। अल्लाह तुम पर अल्लाह का अजाब नासिल हो। तुम मर जाओ, तुम्हें कब्र भी नसीब ना हो। इसकी दर्द की शिद्दत में से इशाल से बद्दुआएं दे रही थी। अल्लाह का अजाब तो मुझ पर बाद में नासिल होगा, पहले तो मैं तुम पर अजाब बनकर खड़ा हूँ। वो कहकर हंस रहा था। तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रही हो, जिसके लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम जिसके इश्क में पागल हो रही हो, वो तो अपनी बीवी पर अपनी मोहब्बतें लुटाता हुआ अपनी दुनिया में मस्त है, और तुम यहाँ इसके लिए तड़प रही हो। बेवकूफ़ औरत, तुम पर तरस आता है ये सोचकर कि जिसके लिए तुम दीवानी होती फिरती हो, इसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो इशाल के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहका लगाकर हंसते हुए कह रहा था। तुम देख लेना, एक दिन मैं और रोमांचा को हासिल कर कर रहूंगी। इसे हासिल करना, इसे अपना बनाना मेरी शिद्दतों का मकसद है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और जिस दिन मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगी, इस दिन मैं तुम्हारे हर सवाल का तुम्हारे मुंह पर जवाब दूंगी। अभी तुम्हारा वक्त है, जितना बोल सकते हो बोल लो। सुल्तान, तुम्हारा बुरा वक्त भी आएगा। मेरी बद्दुआ है कि तुम तड़प कर मरोगे, जैसे तुम मुझे मारते हो, रोज़ तड़पाते हो। बस इसकियों के साथ रोते हुए से अपने ज़ख्मी हाथ को देख रही थी। जब तुम तड़पती हो, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, और जब तुम्हें इसी तरह से तड़पा कर अपने बिस्तर पर ले जाता हूँ, तो मुझे उफ़ और भी सुकून ही मिलता है। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे हर तरह से सुकून देती हो। वो गलाज़त भरी नज़रों से देखते हुए इसके ज़ख्मी हाथ की परवाह किए बगैर इस पर झुकते हुए इसके वजूद से हर नरम रानाई को बेदर्दी से नोचते हुए इसे तड़पने पर मजबूर कर रहा था। निशाल सिसक कर खुद को इसकी वहशत से बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वहशी दरिंदा इसे हमेशा की तरह नोचते हुए खा रहा था। आज सुल्तान ज़रूरत से ज़्यादा वहशी बन चुका था। वो अपना सारा गुस्सा इसके नाजुक वजूद पर उतार रहा था। वो हर एक सांस के लिए तड़प रही थी, और इसकी सिसकियाँ चीख रूम की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। इसके सख्त खुरदरे हाथ नरमाहटों पर बेदर्दी से भरे लम्स छोड़ रहे थे। वो उखड़ी सांसें लिए इससे दूर हो चुका था। वो रोती हुई फर्श पर पड़ी थी। रोना बंद करो, कुछ नया तो नहीं हुआ जो तुम आंसू बहा रही हो। अब तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। वो बेतरतीब कपड़ों को ठीक करते हुए ऐसे बोल रहा था जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ जिस पर इसे आंसू बहाने चाहिए।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा मर्द नसीब हुआ है। मामा का रुमान शाह के इश्क में गिरफ्तार हो, मेरा तशद्दुद बर्दाश्त करती हो। आराम से रहो, खुद भी खुश रहो और मुझे भी रहने दो। खुद को मर्द कहते हो? वो अपने बरहना वजूद को इसके गलासत भरी निगाहों से छुपाने की कोशिश कर रही थी जो इसके वजूद पर नजरें गाड़े हुए खड़ा था। हाय! वो इसे लंबा खींचते हुए तंजिया निगाहों से देख रहा था। मर्द तो मैं हूँ। मेरे मर्द होने का सबूत तुम्हारे पूरे वजूद पर नजर आ रहा है। अभी भी तुम्हें सबूत चाहिए? वो शैतानी हंसी हंसते हुए से हकारत और गलासत की नजरों से देखता हुआ रूम का दरवाजा खोलकर जा चुका था। वो अपने वजूद पर इसकी वहशत के निशान देख कर रोती हुई सिसक कर रो रही थी। एक दिन मेरी इस तकलीफ का इख्तिताम होगा और वो मेरी मोहब्बत मेरी जीत का होगा। सुल्तान, जिस दिन रुमान शाह मुझे अपनी हिफाजत में ले लेगा, देखूंगी फिर तुम कब कैसे मुझ पर गंदी नजर डालते हो। सच कहते हैं, सोचों पर पहरे नहीं होते। अगर पहरे होते तो रुमान शाह को ऐशाल अपने दिमाग में भी न सोच पाती। पागल लड़की ये नहीं समझ पा रही थी कि रुमान शाह सिर्फ मीरब का है। शाह तो मीरब की हवाओं को भी खुद से दूर नहीं होने देता, तो मीरब से दूर होकर इसके करीब कैसे आ सकता है? जो शख्स अपनी सांसों से ज्यादा अपनी जान शाह को अजीज रखता हो, वो खुद किसी के हवाले कैसे कर सकता है? मगर इश्क अंधा होता है, ये इशाल को देखकर अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा था। खैर, अभी तो इब्तिदा है, इश्क की होता क्या है, आगे चलकर मोहब्बत और तकदीर का क्या खेल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। शाह पूरी शिद्दत से मीरब की पंखड़ियों पर झुकते हुए ठंडी पंखड़ियों को अपने गर्म सुलगते लबों में कैद में लिए सांसों को सांसों में उलझाए हुए मदहोश सा हो चुका था। मीरब की पंखड़ियों की ठंडक को नरम गरम लबों की आगोश में मोहब्बत की हरारत बख्श रहा था। दोनों के वजूद में मोहब्बत की हरारत बढ़ते हुए सर्दी की शिद्दत को कम करने लगी। वो पूरी तरह से इससे मोहब्बत की कीमती लम्हे में गाफिल होकर इर्द गिर्द से बेखबर हो चुके थे। मामा, मामा, मामा आप कहाँ हैं? राम की आवाज़ पर दोनों हवास बाख्ता होकर एक दूसरे से अलग होते हुए दरवाजे की जानिब देख रहे थे। मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा बेटा हर वक्त मेरे प्यार का दुश्मन बनकर क्यों घूमता रहता है? कि मुझे मेरा बेटा कम और दुश्मन ज्यादा लगता है। हर वक्त कड़ी सिक्योरिटी रखता है, अब ये आधी रात को उठकर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? शाह ने लफ्जों को चबाते हुए मीरब से दबे दबे लहजे में कहा। शाह को इस वक्त रायम का मोहब्बत भरे लम्हों में खलल डालना जहर लग रहा था। अगर वो शाह का अपना बेटा ना होता तो शाह इस वक्त जाकर इसे 2 थप्पड़ मार देता। शाह, प्लीज मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत मत बोलिएगा। मीरब ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए आहिस्ता से कहा। अगर तुम्हारा बेटा मुझे तुम्हारे साथ सही करने दे तो मैं इसके बारे में भी गलत ना बोलूं। तेरे बेटे की तो ऐसी की तैसी, जो हमेशा गलत टाइम पर एंट्री मारता है। शाह ने आगे बढ़कर इसकी नरम पकड़ियों पर एक जोरदार किस करते हुए अपने जज्बात को जब्त करने की कोशिश की थी, जैसे वो खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मामा, मामा कहाँ हो आप? मुझे पानी पीना है। राइम अपनी माँ को ढूंढते हुए शदीद शायद बालकनी की जानिब आ रहा था। आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी। जाओ, जाकर अपने लाडले को पानी दो, और अगर जाकर तुम इसे सुलाते हुए सो गई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये मत भूलना। आज की रात इसी ठंड में बालकनी पर खड़े हुए तुम्हारे साथ मोहब्बत की हर हद पार करते हुए गुजारूंगा। फिर चाहे तुम ठंड से अगर जाओ या बेहोश हो जाओ, मैं कोई रहम नहीं करूंगा। शाह ने आगे बढ़कर इसके मखमली गर्दन पर पूरी शिद्दत के साथ लब रखते हुए मोहब्बत की मेहर सब की थी। लब उठाते लब उठाते ही इसकी मखमली गोरी गर्दन पर शाह के लबों की सुर्ख मेहर छुप गई थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लबों की गर्मी और दांतों की चुभन भरी शिद्दत को महसूस करते हुए सिसक उठी थी। शाह ने मीरब की पंखड़ियों पर सख्ती से उंगली जमाते हुए उसे चुप करवा दिया था। तुम्हारा प्यारा बेटा अंदर तुम्हारे इंतजार कर रहा है। अगर आवाज निकली तो वो बाहर आकर पूछेगा कि क्या हुआ। फिर मेरी जान तुम क्या जवाब दोगी? शाह ने इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए अपनी मोहब्बत की शिद्दत को मजीद बढ़ाया था। इसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा था। शाह मीरब की बेबसी के एक इस लम्हे को छोड़ने के मूड में नहीं था। शाह ने अपनी तलब पूरी करते हुए इसे सिसकने का मौका तक नहीं दिया था। इसे अपनी मोहब्बत के सार में कैद किए थोड़ी सी और शिद्दत दिखाई तो मीरब ने शाह के सीने पर जोर से मुक्का मारते हुए इसे पीछे कर दिया था। जाने शाह, बदतमीजी नहीं, शाहिद ने सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। बदतमीजी? इसने मासूमियत से जवाब दिया। मेरी इतनी जुर्रात कहाँ है कि मैं आपके साथ बदतमीजी कर सकूं? बेचारी फौरन अपनी बात बदलते हुए नरम लहजे में बोली। मेरा बेटा अंदर इंतजार कर रहा है, प्लीज मुझे जाने दे। वो जल्दी से अपना लहजा बदलकर साफ मुकर गई थी। मामा, मामा क्या आप बाहर हैं? रायम ने बालकनी का दरवाजा खोलते हुए मासूमियत से पूछा। शाह ने दिल ही दिल में अंदर दांत भींच कर सोचा था, कसम नाल जे ए मेरा पुत ना होंदा ते मैं एनू एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना सी। मगर अपने जज्बात पर काबू करते हुए गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मेरे प्यार दा दुश्मन, वो सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। मोहब्बत के गहरे रंग इस लम्हे में वासे थे। मीर इब्राहिम की आवाज़ सुनते ही जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने बेटे के पास जा चुकी थी।
शाह की बालकनी में अकेला खड़ा इस लम्हे को दिल की गहराइयों में कैद करते हुए गहरी सांस फिजा में छोड़कर किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। रेशम रात का खाना खाने के बाद किचन में बर्तन समेट रही थी। हारून पास ही सोफे पर बैठा अखबारात हाथ में पकड़े बहुत मसरूफ नजर आ रहा था, लेकिन नजरें मुसलसल रेशम पर मरकूज थी। रेशम, जी, एक गिलास पानी मिलेगा? जी अभी लाई। वो टॉवल से हाथ खुश करते हुए शीशे के गिलास में डिस्पेंसर से पानी भरते हुए छोटी सी खूबसूरत डिश, इसके अंदर ब्लैक कलर के फ्लावर्स बने हुए थे। इस डिश के अंदर गिलास को सजाकर बहुत सलीके से साथ पानी का गिलास लेकर पास आई थी। जैसे ही रेशम हाथ में पानी का गिलास लिए करीब आई, हारून ने अखबार सामने पड़ी हुई टेबल पर रख दी। अखबार तो वो पहले भी नहीं पढ़ रहा था, मगर बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि वो अखबार पढ़ने में मसरूफ है। रेशम, जी, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए, सब खैरियत तो है? रेशम परेशान सी होकर ग्लास टेबल पर रखती हुई बोली। हारून गहरी संजीदगी के साथ परेशान चेहरे पर नजर मरकूज किए हुए इसे देख रहा था। रेशम ने हल्के नीले रंग का सिल्क का लिबास पहना था, जिसके स्लीव्स के किनारे पर नरम कढ़ाई थी। हारून को रेशम इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब से इसने ये पहना था, हारून की नजरें से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हारून इसे चुप आप चुप क्यों हैं? मुझे बताएं, क्या बात है? रेशम रेशम परेशानी से पूछ रही थी कि वो इसके तजस्सुस भरी निगाहें हारून की खामोशी पर मरकूज थी। इधर आइए मेरे पास। हारून ने रेशम की कलाई को नरमी से पकड़कर इसे करीब सोफे पर बिठाते हुए प्यार भरी नजरों से इसके निखरे निखरे से रूप को देखा। हारून, क्या कोई परेशानी वाली बात है? प्लीज जल्दी से बताएं, आपका सस्पेंस मुझे परेशान कर रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत संजीदा बात है। परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज हारून बताए ना, क्या बात है जो इतनी संजीदा है? रेशम सच में बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। हाथों में जादू? अब ये किस बात पर कहा जा रहा है? हारून, आपने तो मुझे डरा ही दिया। रेशम उलझन में हंसते हुए बोल रही थी। वैसे तुम डरती हुई बहुत प्यारी लगती हो। थोड़ी थोड़ी मुझसे डरती रहा करो। हारून ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ रेशम को अपनी तरफ खींच लिया और नर्म हाथों से इसे गले लगा लिया। कैसे डरूं आपसे? हर वक्त तो प्यार करते हैं, तो डरूं कैसे? मैं चाहूं भी कि डर जाऊं तो आपसे तब भी नहीं डर लगता। वो प्यार से इसके सीने में सर छुपाते हुए इसकी गर्मी को और तहफ़्फ़ुज़ को खुद में महफूज करते हुए दिल की सच्चाई बयान कर रही थी। अब प्लीज़ मुझे जल्दी से बताएं, आपने मुझे क्या कहना था और आप किस तरह के जादू की बात कर रहे थे? तुम जो खाना बनाती हो, कसम से इतना लाजवाब और लजीज होता है, मेरा दिल चाहता है। वह प्यार से इसके गाल पर एक नरम सा बोसा देते हुए दांतों का हल्का सा काटते हुए सरगोशी में बोल रहा था। सच में आपको मेरा खाना इतना पसंद आया है? क्यों, मेरी तारीफ पर शक है? नहीं, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती।